What you see here is not a normal Ladakhi home. इसको बोलते हैं दोक्सा, जो कि है summer home for the cattle, and it has a very interesting ritual and process behind it. Let me tell you the story. Extreme Himalayas में बसा Zanskar with just about 20,000 people is one of the coldest inhabited places on the planet. और ये winters में लोगों के लिए mostly inaccessible होता है as Penzilla और the pass to reach Zanskar बर्फ से ढका रहता है. जितनी हार्श यहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, उतना ही मुश्किल है टू ग्रो फूड. इसलिए यहाँ मेनली शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लाइक व्हीट, मटर, पोटैटोज एटसेट्रा इज ग्रोन. बट एक चीज जिसके लिए ज़ांस्कार फेमस है वो है इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, घी, चुरपी एटसेट्रा. बट इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस हाउ डू द पीपल मैनेज टू फीड द कैटल एंड डू फार्मिंग एट द सेम टाइम? इसका आंसर ढूंढते हुए मुझे पता चला डोक्सा के बारे में, विच आर एक्चुअली समर होम्स फॉर द कैटल एंड लाइवस्टॉक, जहां सब एनिमल्स को रखा जाता है ड्यूरिंग समर्स. दोक्सास को गांव से दूर हाइट पे बनाया जाता है जहां देयर आर नेचुरल ग्रीन पास्चर्स. इससे द लाइवस्टॉक कैन ईट फॉर फ्री और उनके फार्म्स भी बच जाते हैं इन एनिमल्स की ग्रेजिंग से. एक तीर से दो शिकार. बट दोक्सास लाइफ इज नॉट इजी and needs a lot of hard work. इसी लाइफस्टाइल को देखने के लिए मैंने पदम टाउन में लोगों से पूछना शुरू किया. But since it was September and the end of summers, all the animals had already come down. But then I was told that Shila गांव का डोक्सा अभी भी है for another 1-2 days. And with this ray of hope, I went to Shila village to find someone and get to see the Doksa life. सुंदर ब्रिज और नदी क्रॉस करके, थोड़ा ऑफ रोडिंग करके आई रीच द ब्यूटिफुल शीला विलेज टू फाइंड सोनम शेरिंग, जिनका रेफरेंस मुझे पदम से मिला था. इस गांव के सुंदर घर और गलियां घूमते हुए फाइनली मुझे मिला सोनम शेरिंग जी का प्यारा सा घर, विच ही ऑल्सो रन्स एज अ होम स्टे. एंड द वेलकम दैट आई रिसीव्ड वाज द क्यूटेस्ट वन. लद्दाखी कल्चर के हिसाब से उन्होंने पहले मुझे पिलाई द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल बटर टी और द गुड़गुड़ चाय, जिसे बनाया जाता है इस स्पेशल कंटेनर में इन विच फ्रेश बटर, टी, सॉल्ट एंड वाटर इज एडेड. एंड गुड़गुड़ करके बहुत देर तक अच्छे से इसे मिलाया जाता है. Then it is heated again and it is ready to be poured and served to the guests. As long as you keep sitting and talking, ये कप non-stop refill कर दिया जाता है. This is inseparable from Ladakhi culture. चाय के बाद भी सोनम जी did not let me talk about my work. I was offered fresh, piping hot, delicious thukpa, and only after that he listened to me and decided to take me to the Doksa himself. On our way up, मुझे दोक्सा के बारे में और भी थोड़ा पता चला. Basically, it is a community activity जहाँ usually 3 houses from the village take the responsibility for all the livestock of the village for 1 day, and they go to live in the doksa in the evening. And हर रोज the families of the village keep rotating and take their turn to live in the doksa that night. I and Sonam ji met Kunzang on the way, जिसकी आज बारी थी to live in the doksa. हमने बहुत कोशिश करी उससे कुछ पूछने की, बात करने की, बट शी वॉज टू शाय टू स्पीक. थोड़ा सा बताते हुए आइए ना. नहीं बोली. But she led us to the Doksa and the site was simply beautiful with flowing water streams and pulu or the stone walls in which the livestock is kept. Luckily इस village के Doksa में पानी की कमी नहीं है, so that's one less problem. Many villages have to even carry water uphill to the Doksa. After trying a lot, finally one lady from Doksa agreed to talk to me. Nyampo minta sum sum chano ya badi tare minta sum sum palang tho keno palang ma ke sha keno palang guni lung la mani on tama lung la yon na yang mi guni bera ta na lung za me kan pin palang minta sum badi tare riga ke sha keno. Dene peto minda nini bari ta de peto samalung la yong jima da peto choje e pito nima mashe de la yang peto guni rang tur harshe e pito nima shot pe te palang rigan khonje bari barji paguni. सुबह आफ्टर टेकिंग द कैटल टू ग्रेज एंड उनका दूध निकालने के बाद असली काम शुरू होता है टू मेक द मिल्क प्रोडक्ट्स. Rosa yo de oma saje de oma se den rosa oma shoje oma nyalche igan rosa de zem jo zem nasapche de
ओमाशो ते मार फिंग दे ते मार रोसा जामाजे दे मनी गाचन पोरशे ते मार पूरा छोशी ला रोस खांपा खेरशे तेल दाबो सेचे रोसा छुरफे तांचे ओ तो सामान रोसा पिले हनोया। बट इतनी मेहनत करने के बाद जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका कोई जवाब नहीं। इट इज सेड दैट 1 स्पून ऑफ ज़ांस्कार का बटर इज इक्विवेलेंट टू 2 स्पून्स ऑफ अमूल बटर एंड ये मार्केट में बिकता भी काफी एक्सपेंसिव है। हमारे इधर से हिमाचल भी ले जाता है, लेह में भी ले जाता है, कहीं धर्मशाला में ले जाता है और साउथ में भी ले जाता है। बहुत कीमती है, बहुत टेस्ट वाला है। देखने और सुनने में दोक्सा लाइफ कितनी भी अमेजिंग लगे बट ये इजी नहीं है एंड गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द लोकल्स ईच डे। धीरे धीरे ये ट्रेडिशन खत्म भी होती जा रही है बट सम पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प देम बाय एनकरेजिंग दोक्सा टूरिज्म ताकि इन विलेजर्स के पास एक और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो and this beautiful culture of our Bharat does not die. So share this with your friends and do visit one of these beautiful doksas and its people. Help save our cultures. अब क्योंकि समर खत्म हो चुकी है so all of them are going back home and this is the end of Doksa till next summer. I'll see you in my next story. Wish you always. Jololo sami lindu jule दिख रहा है सब कुछ? हाँ हाँ ये घर जो ये घर that you see is not any typical Ladakhi home. इसको बोलते हैं दोक्सा, डोक्सा हाँ। which is called नहीं आप बीच में मत बोलो अच्छा अच्छा और मैं बोलूँ What you see here is not a normal Ladakhi home. इसको बोलते हैं दोक्सा। आपका नाम तो बताइए पहले। कुंजांग।